Welcome to another episode of Legal Update. The topic of discussion is Supreme Court declares right to housing. Why in news? Recently, the Supreme Court in the case of Mansi Brar Fernandes versus Shubha Sharma and ANR 2025 declared that the right to housing is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. The court also urged the Union government to create a revival fund to provide financial assistance to stressed real estate projects undergoing insolvency proceedings. Background of the case. The case arose from the National Company Law Appellate Tribunal decision, which rejected the claims of speculative buyers in the insolvency proceedings of a real estate project. The petitioners seeking compensation for delays and breach of contract were classified as speculative investors. They had invested in properties under a financial scheme rather than a typical builder-buyer agreement. The Supreme Court upheld the NCLAT's ruling and emphasized that the Insolvency and Bankruptcy Code should primarily protect genuine home buyers, not those motivated purely by profit. Court observations. A bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan noted that offering housing is not merely about selling homes. It is an issue of public welfare where banking, allied industries, and employment are also at stake. The court expressed concern about the growing number of real estate projects that face insolvency but are still viable, thereby calling for a revival fund to prevent their liquidation. The court stressed that the government cannot be a silent spectator and must actively intervene to ensure the protection of home buyers and economic stability. The ruling underscores the constitutional obligation of the government to protect citizens' access to housing and improve the regulatory framework around real estate projects. Article 21 of the Constitution. Article 21 of the Constitution of India guarantees the right to life and personal liberty to every individual. It states, "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law." This fundamental right ensures that no individual can be arbitrarily deprived of their life or liberty, and it has been expansively interpreted by the Supreme Court to include a range of rights as the right to privacy, right to a clean environment, and right to livelihood. It forms the cornerstone of individual freedoms in India. Now, let us look at a practice question. The right to privacy was read into Article 21 by the Supreme Court in which landmark judgment? A. Keshwanand Bharti case, B. Menka Gandhi case, C. Puttaswamy case, D. Minerva Mills case. Please provide your answers in the comment section. लीगल अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है सुप्रीम कोर्ट ने आवास का अधिकार घोषित किया। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मानसी ब्रार फर्नांडीज बनाम सुभाष शर्मा और अन्य मामले में यह घोषित किया कि आवास का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे तनावग्रस्त रियल एस्टेट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक पुनरुद्धार कोष बनाए। आइए जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि। यह मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय से उत्पन्न हुआ, जिसने एक रियल एस्टेट परियोजना की दिवालियापन कार्यवाही में सट्टा खरीदारों के दावों को खारिज कर दिया। देरी और अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सट्टा निवेशक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने एक सामान्य बिल्डर खरीदार समझौते के बजाय एक वित्तीय योजना के तहत संपत्तियों में निवेश किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने NCLAT के फैसले को बरकरार रखा है और इस बात पर जोर दिया कि दिवाला एवं संशोधन अक्षमता संहिता को मुख्य रूप से वास्तविक घर खरीदारों की रक्षा करनी चाहिए, न कि केवल लाभ कमाने के लिए प्रेरित लोगों की। आइए जानते हैं न्यायालय की टिप्पणियों को। न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि आवास की पेशकश केवल घर बेचने के बारे में नहीं है, यह लोक कल्याण का मुद्दा है जहां बैंकिंग, संबद्ध उद्योग और रोजगार भी दांव पर है। न्यायालय ने उन रियल एस्टेट परियोजनाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की जो दिवालियापन का सामना कर रही हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार्य है, इसलिए उनके परिमापन को रोकने के लिए पुनरुद्धार निधि की मांग की गई है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती तथा उसे घर खरीदने वालों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए।
यह निर्णय नागरिकों की आवाज तक पहुंच की रक्षा करने तथा रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए नियामक ढांचे में सुधार करने के सरकार के संवैधानिक दायित्व को रेखांकित करता है। आइए अब जानते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के विषय में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसमें कहा गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी व्यापक व्याख्या की गई है, जिसमें निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और आजीविका का अधिकार जैसे अनेक अधिकार शामिल हैं। यह भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया? विकल्प ए केशवानंद भारती मामला, विकल्प बी मेनका गांधी मामला, विकल्प सी पुट्टुस्वामी मामला और विकल्प डी मिनर्वा मिल्स मामला। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।